Dear students, today we will discuss some more examples of polysaccharides. We have discussed बच्चों polysaccharides are of two types, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Today we will discuss examples of both homopolysaccharides and heteropolysaccharides. In case of homopolysaccharides, all units are identical. As in case of starch, we already discussed. Example of starch, and that is a homopolysaccharide of all glucose units. That why it is polyglucan. Today we will discuss more examples of homopolysaccharides as well as heteropolysaccharides. तो बेटे टुडे दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सभी बच्चे ध्यान करेंगे बच्चों, नीट वाले स्टूडेंट्स, कंपटीशन वाले बच्चे, बेटे एक एक लिंकेज, एक एक एग्जाम्पल बच्चों, और बच्चों बीएससी वाले स्टूडेंट सभी स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे. बी केयरफुल बीएससी स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चों हमने स्ट्रक्चर्स करवाए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. और नीट वाले स्टूडेंट्स, नेट वाले, गेट वाले स्टूडेंट्स, वो सब बच्चों हमने एक एक लिंकेज बताई, अल्फा बीटा सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों. तो ये सब जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उनकी पीडीएफ फाइल हमने वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए. सभी बच्चे अच्छी तरह से बच्चों अपने नोट्स बनाएं, वीडियो लेक्चर के थ्रू बेटे स्टडी करें और बेटे प्रॉपरली अपने नोट्स को स्टडी करें, ठीक है. तो क्या कुछ डिस्कस कर रहे हैं टुडे? वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ होमोपोलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपोलीसैकेराइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लाइकोजन. In our last lecture we have covered starch. That starch having two components, amylose and amylopectin, and today the glycogen. Starch हमने कहा बच्चों that is plant starch, and this glycogen is animal starch. In photosynthetic plants food gets stored in the form of starch. और हम सब जितने भी होके बच्चों heterotrophic, all animals, क्या देख रहे बच्चों, food gets stored in glycogen form, and this glycogen gets stored in liver and muscles. It means this glycogen, it is animal starch, it is a storage homopolysaccharide. हमने कहा बेटे storage, because in our body, in animals, food gets stored in glycogen. It is homopolysaccharide because all units of glycogen are identical. It is polyglucan because it is made up of several units of glucose. ये देख रहे बच्चों ये structure of glycogen, and this glycogen having 30,000. It consists of about 30,000 glucose units. That's why it is polyglucan. Several glucose units, about 30,000 glucose residues. It gets stored, क्या काम है ग्लाइकोजन? It gets stored in our liver and muscles. Its structure किससे सिमिलर है बच्चों? ये देख रहे बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने स्टार्च में डिस्कस किया माइलोपैक्टिन, that was a branch structure, and this glycogen also a branch structure. It means the structure of this glycogen resembles, it is very much similar to amylopectin of starch. But be careful NEET वाले students, be careful AIMS वाले students, this glycogen, it is profusely branched. It's branching much more, as in case of amylopectin the branching interval that was about 25 glucose residues, but in case of glycogen the branching occurs at about 8 to 10 glucose residues. हमने कहा बच्चों 25 glucose residues के बाद branching, but in case of glycogen branching occurs at an interval of 8 to 10 glucose residues. The structure बिल्कुल उसी तरह से बच्चों माइलोपैक्टिन की तरह से, but branching more in case of glycogen. हमने कहा कि बच्चों 2000 to 2 lakh glucose units, but in case of glycogen difference not करे competition वाले बच्चे, but in case of glycogen the structure okay it resembles amylopectin, but the glucose units are about 30,000. linkage बिल्कुल वही बच्चों, alpha 1,6 linkage branching पे, और बच्चों straight form में alpha 1,4 linkage. Two types of linkage बिल्कुल similar like amylopectin of starch.
नेक्स्ट एग्जांपल होमोपोलीसैकेराइड का, इनुलिन, इनुलिन, INULIN. बी केयरफुल, नीट वाले स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, इनुलिन that is a homopolysaccharide of fructose, so it is polyfractal. बच्चों ये पोलीग्लूकन का हमने स्टार्च, ग्लाइकोजन हमने पोलीग्लूकन का, ऑल यूनिट्स आर ग्लूकोज, बट इन केस ऑफ इनुलिन all units are fructose, so it is polyfractal, and this inulin again it is a storage homopolysaccharide of some tubers and roots of, particularly नोट करें नीट वाले स्टूडेंट्स, डहलिया. एक एक एग्जाम्पल बच्चों फोकस करेंगे बच्चों, जो 660 का टारगेट रखे बच्चों, फुल मार्क्स. एंड दिस इनुलिन क्या काम ने, इट इज ए पॉलीफ्रैक्टन, ऑल यूनिट्स आर फ्रैक्टोज फ्रैक्टोज फ्रैक्टोज. एंड दिस इनुलिन हम बच्चों मेडिकली यूज करते हैं टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज. प्यारे बच्चों, इन आवर किडनी, जो कि मैं आगे चल के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, द स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज, द नेफ्रॉन्स, इन दैट नेफ्रॉन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर्स. इन दैट ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट बनेगा बच्चों, उसकी फंक्शनिंग को स्टडी करना है, किडनीज की वर्किंग को स्टडी करना है, देन वी यूज मेडिकली इनुलिन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेलुलोज. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक एग्जाम्पल नोट करें. बीएससी स्टूडेंट सभी स्ट्रक्चर्स पे फोकस करें बच्चों. सेलुलोज, अब तक हम बता रहे थे बच्चों, स्टार्च स्टोरेज होमोपोलीसैकेराइड, ग्लाइकोजन अगेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, दिस इनुलिन अगेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, बट दिस सेलुलोज it is a structural polysaccharide, homopolysaccharide, and this cellulose again made up of all units of glucose, about 6000 glucose units वो बनाएंगे बच्चों cellulose को. It is polyglucan which is common. कहाँ बच्चों? This cellulose it is present in the cell wall of, कहाँ बच्चों? प्लांट्स की सेल वॉल की बात कर रहे हैं. दिस इज द मोस्ट अबंडेंट, नोट करें नीट वाले स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड एज वेल एज इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द नेचर. दिस सेलुलोज आल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ एल्गी. सम बच्चों फंजाई, कौन सा फंजाई ग्रुप? नोट करें अगेन, फाइकोमाइसिटिस ग्रुप, फाइकोमाइसिटिस ग्रुप, सम प्रोटिस्टन्स. सेल वॉल में बताया बच्चों ने. इट अकर्स इन प्योर फॉर्म. अबाउट 98% ऑफ कॉटन फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट सेलुलोज. वुड की बात करें तो बच्चों, दैट वुड उसका मेन कंपोनेंट अबाउट 50% पार्ट इज सेलुलोज. ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों सेलुलोज का. इट इज नॉट ब्रांच्ड, इट इज ए स्ट्रेट स्ट्रक्चर, about 6000 glucose unit, but the difference is, ये देख रहे बच्चों, जो भी ग्लूकोज यूनिट्स है, these glucose units are not D alpha D glucose. Instead of these units are beta D glucose. प्यारे बच्चों, ये देख रहे हैं कार्बन फर्स्ट को नोट करें, उसका OH ग्रुप नॉट राइट हैंड, OH ग्रुप हम लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं. इट इज बीटा डी ग्लूकोज. It means the linkage in case of cellulose, that is beta 14 instead of alpha 14. हम यूज कर रहे हैं बच्चों उसका OH ग्रुप लेफ्ट हैंड, ये ऊपर देख रहे हैं बच्चों, नॉट राइट हैंड. तो प्यारे बच्चों, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइलो चेन एंड सेलुलोज स्ट्रक्चर. क्या काम ने? सेलुलोज कहाँ बच्चों? प्लांट्स की सेल वॉल की बात कर रहे हैं. मेन कंपोनेंट ऑफ बच्चों एल्गी सेल वॉल, सम फंजाई, सम प्रोटिस्टन्स, दैट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड इन आवर बॉडी सेलुलोज एक्ट्स एज ए रफेज. ठीक है बच्चों, तो ये देख रहे बच्चों सेलुलोज, द लिंकेज नोट करें लिंकेज, दैट इज नॉट अल्फा, दिस टाइम इट इज बीटा 14 लिंकेज. नेक्स्ट एग्जांपल इज काइटिन. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहा बच्चों हमने? काइटिन, दैट इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड. मोस्ट अबंडेंट क्या कहा हमने? सेलुलोज. सेकंड नोट करें यही बच्चों,
काइटिन. इट इज प्रेजेंट, दिस काइटिन इज प्रेजेंट. कहाँ बच्चों बता रहे हैं? इन द एक्जोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स एंड बच्चों सेल वॉल ऑफ फंजाई. So it is, this chitin is, it is named fungal cellulose. क्या कहा बच्चों हमने? Fungal cellulose. This time this chitin it is a heteropolysaccharide. अब तक सारे एग्जाम्पल्स बच्चों हमने होमोपोलीसैक्राइड्स बताए, चाहे वो स्टार्च था, चाहे ग्लाइकोजन, चाहे बच्चे इनुलिन, चाहे सेलुलोज. बट दिस टाइम इन केस ऑफ काइटिन, ये देख रहे हो उसका स्ट्रक्चर देखे तो बच्चों एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, दैट इज काइटोसामीन. यहां बच्चों किसका देख रहे हैं बच्चों? मिलावट देख रहे हैं. यहां किसके मिक्सचर देख रहे हैं हम? NHCOCH3 group. N-acetyl glucosamine group is here and the linkage is again बच्चों the beta D glucose units are involved. It means the linkage is beta 1,4 linkage in case of chitin. And the last example is again heteropolysaccharide. It is hyaluronic acid. Hyaluronic acid, that is a characteristic feature of, कहाँ बच्चों? जितनी भी हमारे joints उनका synovial fluid, and in our brain the cerebrospinal fluid, in our spinal cord cerebrospinal fluid. In that fluid hyaluronic acid, it is heteropolysaccharide because this hyaluronic acid it consists of alternating units. कौन कौन सी alternating units बच्चों? बीटा डी नोट करें बच्चों, ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड बीटा डी ग्लूकोसामीन. एंड द लिंकेज, फिर नीट वाले स्टूडेंट्स, नेट वाले स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे दिस हाइलोनिक एसिड, द लिंकेज इज बीटा 1,3 लिंकेज. हमने सेल वहां लिखा बच्चों, कहां की बात कर रहे हैं? सुक्रोज अल्फा 1,2. और यहां देख रहे बच्चों बीटा 1,3 लिंकेज इन केस ऑफ हाइलोनिक एसिड. ये प्यारे बच्चों सारा सब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर थे. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे एंजाइम्स. थैंक यू.